I was working a 9 to 2 job. काफी डल बोरिंग सी मंडेन सी जॉब थी. दो छोटे छोटे बच्चे थे. एंड आई सॉ कि यार ये क्या फ्यूचर नजर आ रहा है मुझे. 5 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी. 10 साल बाद मेरी 9 to 5 9 to 2 जो है वो 9 to 5 बन चुकी होगी. फिर 9 to 7 चल चुकी होगी. और फिर मैंने मर जाना है. ये क्या स्टोरी है. Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, at whatever time you are catching this next episode of Kabil Kahani, where it is my job to bring out the stories of passionate founders who had the courage to pursue their love for the product or for the business that they wanted to go ahead with. And today we have one such amazing founder who started 20 years ago. Her name is Mariam, and she is the founder of Dali Earth Foods. Dali Earth Foods came into my radar about 6 months ago when at Baked in Lahore, my wife was like searching for all these fitness brands because, as you guys know, on our Instagram as well, we are too much into fitness. And then we started trying their granola, which then became our household food, which then became my backpack food. So I'm recording this episode while I'm in Malaysia, and in my backpack in airport as well. On the flight, I had the granola as well. So this has kind of become my like go-to munching when I am not in a cheat day mood food. So I am, and as I got into the brand, I started reading about it, and I was like, Mariam, you have to come. We would be absolutely thrilled to have you here. So she's so kind to be here, and we're gonna go into her story, her inception story, how she grew, and all the cool stuff she's doing on social media, which she says that she's not a very social media person, but it's good fun to see how she has gotten into it. Mariam, how are you? And welcome to the Kabil Kahani. Thank you very much. Thank you for having me. I am genuinely surprised and shocked that you have the granola all around you every time of the day. That is my It's go-to good to breakfast. Go-to breakfast with Greek yogurt. इसी इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसके हम एक दो और वेरिएंट्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया. इनफैक्ट वी डेवलप्ड वन यस्टरडे, सो सून विल बी मार्केटिंग दैट आल्सो. Wow. Mariam, I want to first give everybody a present picture, and then we're gonna go into the history and how it all started. Present picture for people who have not yet heard about Dali Earth Foods. आप बताएं थोड़ा सा कि what is Dali, what are the product offerings, and what is the current state of, let's say, market that you guys have? So Dali is a brand which promises purity. I think that's the simple way to put it. My promise to my customer has always been for the past 20 years कि मैं इसके अंदर किसी किस्म की मिलावट नहीं करूंगी. अगर मिलावट तक बात पहुंचेगी तो मैं वो प्रोडक्ट छोड़ दूंगी. For example, about a year ago, haldi, which is one of our products, because we do spices, stone ground spices, then we do oils, जिसके अंदर घी तेल आता है, we do flowers, फरक फरक आटे हैं, different blends, and we do honeys, and of course we do cereals. तो हल्दी के अंदर मार्केट, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ लिटिल लैब, वी हैव टू टेस्ट थिंग्स बिफोर वी पैकेज देम. तो जब हमने टेस्टिंग की तो उसके अंदर आर्सेनिक आई, नजर आई. मैंने एक सैंपल आया, खैर मैंने वो खरीद लिया हुआ था. आई हैड टू रिजेक्ट इट, आई हैड टू सेंड इट बैक. एक जानने वाले से खरीदा था, उससे भी रिश्ता खराब हुआ. फिर दूसरा आया, तीसरा, चौथा. आफ्टर 7 samples of rejecting 7 haldi trucks, I decided that I would not do haldi until I got arsenic free haldi. So उसके लिए मुझे 6 से 8 महीने लगे. So I'd rather not do a product कि वो अगर प्रॉफिट आपका खुदा है फिर आप कर लेते हो ना. फिर आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी आया है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ी सी आर्सेनिक की आ जाएगी ना, किसको किसको पता लगेगा, बट आपको खुद को पता है. सो दैट हैज बीन माय नंबर 1 प्रायोरिटी कि कस्टमर को कभी जब वो डाली का आइटम उठाए तो उसको पता हो कि भाई इस मैं बेधड़क के उठा सकता हूँ. Beautiful. And where currently, as talking about the current state, where are all the places that people are buying Dali from? Is it online mostly, or is it partner No. stores? Online तो बहुत थोड़ा segment है. We are in about
almost 300 stores, ज़्यादातर लाहौर में. We have about 230 stores, 250 stores in Lahore. And then कराची के अंदर हैं कोई 20-30 स्टोर, और इस्लामाबाद में है ऐसे कोई 20-25 स्टोर. तो 300 प्लस स्टोर हैं. मेन जो आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन सब के अंदर है. छोटे छोटे स्टोर्स में भी है, वो छोटी छोटी चीजें रख लेते हैं, हनी रख लिया, मसाले रख लिए, नॉट द एंटायर रेंज. Mayam, Kabil ke andar we said that you guys are the new Pakistan. And we say it because we've all grown up in a legacy Pakistan. Of course, there are larger brands, there's the conventional ways of doing things. There are, among different industry, there's Pepsis and Coca-Colas and P&Gs and Engros and Nestle's and so on and so forth. But if I look at the behavior of millennials and Gen Z, we are primarily, quite a lot of us are slowly shifting towards consuming products, whether it's buying कपड़े या घर की चीजें या खाना पीना. और मेकअप, even makeup अब देखो local मिल रहे हैं. From brands who are as we call the new Pakistan brands. These are not the brands that are the legacy companies that have been international and been like operating for decades and decades. So keeping that in mind, you started in 2005. Yes. What was going on in your life? Do a bit of time travel with us. What stage in life you were in, and how did you end up having this idea that I want to start this passion of mine? It was very simple. I was working 9 to 2 job, काफी dull, boring सी, mundane सी job थी. 2 छोटे छोटे बच्चे थे. And I saw कि यार ये क्या future नजर आ रहा है मुझे. 5 साल बाद मैं क्या कर रही होंगी, 10 साल बाद मेरी 9 to 2 जो है वो 9 to 5 बन चुकी होगी, फिर 9 to 7 चल चुकी होगी, और फिर मैंने मर जाना है. ये क्या स्टोरी है? So the job that I was where I was, उसके अंदर पैसे भी कम थे. ये मध्यम सी नौकरी थी, because my concentration was on my kids obviously. And also round about that same time, the kids had started eating roti, आम चीजें उन्होंने खानी शुरू की. तो I was on the lookout for आटा जो कि वो white चिट्टा वाला मैदे वाला आटा ना हो. तो I went to 2 or 3 चक्कियां. लाहौर में आखिर चक्कियां काफी लगी होती हैं. तो वहां पे गई तो I was shocked to see कि उन्होंने ऐसे गंदम की ढेरी पड़ी हुई है, और उसके अंदर वो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं ना, वो वाइट. तो वो बूढ़े से बाबा जी थे, उन्होंने नैप्थलीन बॉल्स डाले हुए. तो मैंने उनको कहा कि बाबा जी ये इसके अंदर जब आप आटा बनाएंगे ना, ये घुल जाएंगे इसके अंदर. तो ही टर्न अराउंड एंड सेड, बीबी किन्नू पता लगना है केड़ा को टेस्ट आना है, उन जाएगा हर एक दे अंदर. अच्छा, I said चल ठीक है, तुसी आटा कोल ही रखो अपना. I went to the next couple of, मैंने और ढूंढी, कोई वहां गई. उन साहब ने मर्क्यूरी होती है ना, मर्क्यूरी, वो मर्क्यूरी इस्तेमाल कर रहा था. जैसे वो नैप्थलीन बॉल्स इस्तेमाल कर रहे थे चूहों को मारने के लिए, वो मर्क्यूरी उन्होंने छटा. एंड यू नो मर्क्यूरी, वंस यू थ्रो इट, यू कांट कलेक्ट इट. वो तो छोटे 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 उसके वो पॉइजन के जो फैल जाते हैं. सो दैट वाज गोइंग इनटू द आटा. So after visiting these 2 places, I decided कि मैंने रोटी ही नहीं खानी. So actually, I was working with Samia Mumtaz. Actually, you would have heard of her. She's an actress, still is. So we both were working for the same NGO. तो हम उसके पास जमीन थी, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था. तो उसने कहा कि चलो यार, मैं गंदम उगाऊंगी, तुम इसको मार्केट करो, पैकेज करो. So actually, it took us less than 2 weeks, no business plan, because हमने ना उसने बिजनेस पढ़ी हुई थी ना मैंने पढ़ी हुई थी. लेकिन उस बेचारी को मेरे अंदर यकीन बहुत था, मुझे अपने अंदर यकीन नहीं था. उसने कहा मैं उगाऊंगी, तुम इसको बेचना. हमने कपड़े के थैले लेके खुद हाथ से सीके, वो एक चक्की हमने, रोड़ा पिंड है यहाँ से about 35 minutes away from central लाहौर, वहां पे हमने जाके सेटअप किया. उसकी जमीन भी उधर ही करीबी थी. And I was just thinking this the other day. I went past Roda and I was like, my God, मैं उन दिनों में जब सड़कें नहीं थी, टूटा फूटा लाहौर था आज से 20 साल पहले, मैं रोडे आती थी बच्चों को स्कूल छोड़ के, and I would sit there, fill the atta with that, I forget that gent, Tarek, I think his name was. And then we would supply to Jalal Sons, was our first store. ये जो main market में है Jalal Sons. तब एक ही होता था Jalal Sons. आज तो मेरे कोई 70 पर हैं जलाल सन्स खुले हुए, और अल्फताज और भी ज्यादा हैं. और स्टोर में एंट्री कैसी हुई थी, I'll just tell you. It was a Friday afternoon.
I went into the store. I was an old customer there, and I said, मैं ये आटा रखना चाहती हूँ अपना. He said, अच्छा कल जुमा है तो जुमे से पहले पहले ले आना. अब आज अगर 20 साल बाद आप किसी स्टोर में जाते हैं, आपको 2 महीने लगते हैं टू रीच द पर्सन जिसने प्रोक्योर करना है. उसके बाद वो कहता है बीबी 10 लाख दे सकती हैं, 20 लाख दे सकती हैं, 25 लाख दे सकती हैं, तो आपकी इंडक्शन फी है अगर आपने 800 रुपए का आटा बेचना है. दिस इज हाउ टाइम, आई डोंट नो क्या हो गया लोगों को. ये अब ये हो गया यहाँ पे, आप स्टोर में एंट्री नहीं कर सकते. तो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने 20 साल पहले अपना पैर जो है था ना, वो क्या पैर क्या पूरी टांग ही अंदर घुसा ली, और उसके बाद हम फिर चल से चल. तो अब जो लोग प्लानिंग, जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट, जस्ट डू इट लाइक नाइकी डिड इट. वाओ वाओ मरियम, ये इस स्टोरी के अंदर द थीम व्हिच हैज कम कपल ऑफ टाइम्स इज के यू जस्ट took the step. ये दोनों जो step है ना, to going to the production and then even entering Jalalsons and doing this. So ये confidence back then 20 years ago कैसे था? Was it like, if we go further back and dive even deeper, this confidence के यार मेरे से हो जाएगा, मैं तो कर लूंगी, ये बिजनेस भी कर लूंगी, मैं ये बना भी लूंगी, मैं मेरा आगे बिक भी जाएगा, ये कॉन्फिडेंस की क्या स्टोरी है, क्या पीछे आता है कि हाउ डिड यू हैव कॉन्फिडेंस की बात ये है कि एक तो मुझे पता था कि ये मेरी नीड है, अगर मेरी नीड है तो किसी और की नीड भी होगी. इस बात का मुझे Steve Jobs saying on making the iPhone that I want to make the product that we are the first users of. If we want it, then others will be in the world who would want that as well. एब्सोल्युटली. ये तो हो नहीं सकता ना कि मेरी एक नीड हो जो किसी और की जरूरत ही ना हो. ना यहाँ अब तो थी नहीं ऐसी ये नीड. वाज अ प्रीटी बेसिक नीड, खालिस खाना. दैट्स एज बेसिक एज इट गेट्स. एंड दूसरा जो आई थिंक, कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, इग्नोरेंस कह सकते हैं. आई डिडंट नो व्हाट ऑल कुड गो रॉन्ग. व्हेन यू डोंट नो, इग्नोरेंस इज ब्लिस ना. जब आपको पता ही नहीं कि क्या गड़बड़ हो सकती है, तो आप बेधड़क छाल मार देते हो. तो वो You're absolutely इतनी, और right. इन्वेस्टमेंट नहीं थी कोई ना, या तो बहुत लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हो. पीपल हैव गॉट दैट बैगेज कि जी ये सारा रुड़ गया तो क्या बनेगा, वो भी नहीं था. You're absolutely right. Also, I mean, it's beautiful to hear this because this very simple nuggets that you're sharing are very in line with the nuggets that I have been listening and hearing from the top entrepreneurs of the world as well. Mark Zuckerberg, in his commencement speech, said that if he knew everything about how to build a social media platform, he'd never be able to build it. The idea is it is so difficult once you know this thing, but he's like, we did not know what it takes to build a social media platform, so we went ahead and we just built it, and then we figured it out while we are on the journey कि अब क्या करना है. And many pivots that happen in the journey, but actually this idea कि nobody has it figured out completely, and once you're on the journey, but I think beautiful confidence. So this, and ये जो procurement वाली story है, when you were already, let's say, producing it, कि आपका आटा, खालिस आटा आने लग गया, तो how did you guys decide? This was again pre-internet. कैसे, क्या, किसने advice दी, या कैसे सोचा कि customers तक कैसे पहुंचना है, which is a very big thing. हाँ, so क्योंकि तब तो okay, so I was also anti marketing. I'll tell you why. You look at a packet of Lay's, ठीक है, कितनी खूबसूरत पैकेजिंग है, करोड़ों अरबों रुपए उसकी मार्केटिंग पे लगते हैं, और वो आपको बेच क्या रहे हैं? सोडियम के अंदर 6 तले हुए आलू के पत्ते. तो वो आई वाज अगेंस्ट दैट, बिकॉज मेरे दिमाग में जिस चीज को इतना हेविली मार्केट किया जा रहा है, वो जरूर आपकी सेहत के लिए मुज़र है. I had made that connection. I maybe it was probably a wrong connection to make, but I still stick by it. कि अगर इतनी मार्केटिंग हो रही है ना, तो चीज बिल्कुल वेली फारिग है. That's why it needs all that marketing. So I wanted the product to speak for itself. इसीलिए 20 साल में भी मैं वहां नहीं पहुंची in my numbers, जहां पे मेरे से 5 साल पहले अभी कंपनी आई हैं और वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई हैं. मेरा एम नहीं था वो. I was not wanting to be a Nestle or a McDonald or a Hardee's.
दैट्स नॉट वेयर आई वाज हेडिंग। तो वो मार्केटिंग वो की नहीं ना, मैंने आज तक कभी मार्केटिंग की नहीं, वर्ड ऑफ माउथ से ही चला। ये अब बता रही हूँ, अब 6 महीने पहले बेटी आई है सोशल मीडिया पे, Yeah. तो उसने उसको चलाना शुरू किया 19.5 साल बाद। How did you then decide 20 years ago कि how to partner with the retail? Like ये वाली strategy कहाँ से आई कि हम कैसे बेच सकते हैं, customers तक कैसे पहुंच सकते हैं? And let's try Jalal Sons to start with. Jalal Sons was the easiest target. It was right there sitting in main market. I knew so many people. I knew who went to it. तो उसको मैंने कहा कि आप इसको शेल्फ पे सामने रख लेंगे, और पैकेजिंग फिर हमने ऐसे की कि बहुत ही बेसिक पैकेजिंग की, ताकि वो आपके बेसिक पन के अंदर ही दिखना शुरू करते। विजिबिलिटी होती है ना, तो अगर आप That works, by the लैक way. ऑफ कलर, That works even इट today. वर्कड, Like I, या इट it वर्कड। caught our eye for the same reason as well, that it felt too earthy. It actually felt like this is like the packaging itself felt very earthy. It didn't feel like uh या popping, modern, cartoonish, nothing. It was like very earthy. And that could be because in the last, let's say, 3 to 5 years, the world has generally moved towards a lot of health conscious foods and all that stuff. So I think your packaging over time is now working probably even better than, I don't know what the landscape was 20 years ago. हाँ, But नहीं now वो things. लोग मुझे यार कोई कलर ऐड करो, ये क्या, ये मिट्टी की तुमने मैं कहती थी भाई ये मुझे यही पसंद है, अगर तुमने पैकेजिंग के लिए लेना है या तुमने प्रोडक्ट के लिए लेना है। फिर वो सोच में पड़ जाते थे, बट एक्चुअली यू नो द ह्यूमन माइंड इज सो स्ट्रेंज। यू वांट समथिंग येट यू गो फॉर द ब्लिंग, यू वांट द अर्थ बट यू गो फॉर द ब्लिंग। That's a beautiful nugget right there. Uh, आप मुझे बताएं the first sale that comes to your mind, and the first, and then the road to the first 100 sales. When did that happen and how did that make you feel? देखो फॉर द फर्स्ट 7 years ना हम लॉस में थे। Okay, okay. So yeah, so Run, actually run us through a never, bit of economics here in the first 7 years के production cost कैसे आ रही थी, फिर partner cost भी होती थी जलाल सन्स वगैरह की, and then sale cost, like how did the economics work for the first, let's say, देखो 1 to 2 years? economics didn't work in the first 7 to 8 years because हम प्रोड्यूस ही थोड़ा करते थे। हम इतना ज्यादा प्रोड्यूस करके रख नहीं लेते थे कि भी वो खराब हो जाए, ना बिके और फिर हमारे पल्ले पड़ जाए। तो जैसे जैसे पहले 10 पीस भेजने शुरू किए, फिर उसने कहा जी चल 10 से 11 पीस कर दें। इट वाज सो द ग्रोथ वाज सो ऑर्गेनिक कि वो एक कदम आगे 2 कदम पीछे, वो उसके अंदर ही हम लगे रहते थे। हमने ये सोचा ही नहीं कि इससे पैसे कभी बनेंगे भी, क्योंकि 7 साल तो पैसे बने ही नहीं। 8वें साल में जाके जब ब्रेक इवन आए तो समझ आए कि किसी ने कहा कि तुम लोगों ने कभी तनख्वाह ली है? तो हमने कहा तनख्वाह नहीं, हम तो नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, तो हम वैसे ही अपना शौक पूरा कर रहे हैं। सो देन इट केम अबाउट कि अच्छा अपनी तनख्वाह भी निकालनी, वो भी निकलनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली नाउ व्हेन आई थिंक बैक तो मैं कहती हूँ कि लोग प्लान बनाते हैं, लोग उसको फिर आगे का फोरकास्ट करते हैं। हमने कुछ नहीं वो किया, 0/0। इट जस्ट ट्रंडल्ड अलोंग, इट वाज शेयर मैजिक। फॉर्चुनेटली वी वर ब्लेस्ड। आई थिंक अल्लाह ने कहा इनको खुद तो कुछ करने आना ही नहीं, मैं ही कर दूं इनके लिए। And how did that first year look like in terms of working schedule? आप product produce कैसे कर रहे थे, supply कैसे कर रहे थे, how many people were involved, or you were running around everywhere on your own? हाँ, देयर वाज मी, देयर वाज समिया। हम प्रोडक्शन में, समिया प्रोडक्शन मैनेज करती थी ज्यादा, मैं भी जाके उसके साथ हेल्प कर देती थी। और एक तो हमारा स्टोर था, हम बड़ी देर एक ही स्टोर के साथ रहे बिकॉज उस स्टोर की अपनी ब्रांचेस नहीं थी। फिर जब उस स्टोर की ब्रांचेस आनी शुरू हो गई तो उन्होंने कहा चले हमें इस ब्रांच में भी दे दें, उस ब्रांच में भी दे दें। बाय दैट टाइम वी हैड आल्सो अप्रोच्ड अल्फता, एंड अल्फता तब एक स्टोर ही होता था वो गुलटेक्स के पास लिबर्टी में, तो वहीं हम वहीं सप्लाई करते थे। वो खुशकिस्मती से वो उन स्टोर्स ने खुद ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते गए हम भी उनके Nice. साथ बाकी स्टोर्स में आगे चले गए। हमने हमने और स्टोर्स को तो फिर मे बी हाँ 9वें 10वें साल के अंदर देन समिया डिसाइडेड कि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वो एक्टिंग के अंदर फुल टाइम जाना चाह रही थी। तो ऐसे समिया फिर डिसीजन टेकिंग के अंदर भी टाइम लग जाता है, या तुम पूरा कर लो या मैं पूरा कर लेती हूँ। हाँ 100% की, सो दैट देयर इज नो हमारी तरफ से स्लोनेस ना आए उसके अंदर। शी सेड यार मैंने तो एक्टिंग में जाना है, तुम खरीद लो मेरा शेयर। तो मैंने उसका शेयर खरीद के
फिर मैंने जरा कुछ इसके अंदर थोड़ी और मेहनत करनी शुरू की, प्रोडक्शन को देखना शुरू किया। प्रोडक्शन इन द मीन वाइल, बिकॉज वी वर ऑलवेज इन रेंटेड प्लेसेस, वी स्टिल आर इन रेंटेड प्लेसेस। तो वो कभी यहाँ से वहां वो मशीनें उठा उठा के, वो अभी भी वो चल रहा होता है, वो अब तो इतनी आदत सी हो गई है। सो वो भी साथ साथ चलता रहता था, कभी रोड़े पेंट तो कभी वो चुंगी सदियां, कहीं ना कहीं हम पहुंच जाते थे, वो जगह मिल जाती थी। कभी ऊंट वाला कोलू, कभी उसके पास जगह ले ली थोड़ी सी। तो it's been a beautiful journey actually, now when I look back. And what were the kids experiencing looking at their mom back in those days? Ki mom is just every day she goes out, going from here and there, like becoming a businesswoman. Then, like, what was their from their viewpoint? What was happening in the house? I think initially तो वो बड़े छोटे थे तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, but then as they started, जब इन्होंने प्रॉपर स्कूल जाना शुरू किया तो ये अपने जब लंच में ये इस तरह की चीजें लेके जाते थे तो लोग इनसे पूछते थे, तो देन समवन वुड से, अच्छा अच्छा वो आपकी अम्मी का है ब्रांड, सो जब कोई बाहर का इंसान कहता है ना तो फिर घर वालों को कदर आती है, वरना वो कहते हैं ये क्या रोज आटे पिसे हुए आ रहे हैं, मसाले पिसे हुए आ रहे हैं, एवरीवन स्नीजिंग ऑल ओवर द प्लेस। वो जब बाहर से लोगों ने कहना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि ओ अच्छा, ये तो कोई काम हो रहा है, एक्चुअल काम हो रहा है। सो Or इट वाज रिवर्स साइकोलॉजी। amazing. Dali का नाम, it's a very unique name. इसकी क्या स्टोरी है? यू गोइंग टू फेंट। डाली का नाम इस तरह आया कि समय और मैं हमें समझ नहीं आई थी क्या नाम रखें। अब 2 दिन रह गए थे, 3 दिन रह गए थे, पैकेजिंग के ऊपर लोगो बनना था, नाम ही नहीं आता था तो लोगो क्या बनना था। तो वी वर गोइंग टू, ये बोतल बाजार है इधर लक्ष्मी चौक के पास, बोतलें लेने जा रहे थे तेल के लिए, शीशे की बोतल, डिडंट वांट टू यूज प्लास्टिक, वी वर इन द कार, लुगत पड़ी हुई थी। तो हमने कहा चलो लुगत का पेज खोलते हैं, जिस पेज पे खुलेगा ना उस पेज पे जो आखिरी वाला लेफ्ट पे नाम होगा ना वो रख लेंगे। सो वी ओपन द पेज, रेड लाइट थी, आई रिमेम्बर, हम रेड लाइट के ऊपर खड़े हुए, तो समिया कहती है यार ये क्या, वो डाली का नाम आया, डाल अलिफ लाम छोटी है। अच्छा, अब उसके मीनिंग भी देखो कितने एप्ट हैं। एक उसका मीनिंग है शाख, द ब्रांच ऑफ अ ट्री। दूसरा उसका मीनिंग है कि जब पंजाब में पहली फसल आपकी निकलती है ना तो आप अपने चाहने वालों के घर उसकी डाली भेजते हैं। तो इससे इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता था। हमने कहा यार दिस इज इट। फिर अर्थ फूड्स हमने आगे खुद ऐड कर दिया कि हमने कहा लोगों को कुछ तो समझ आए ना कि कनेक्शन क्या कर रहे हैं हम। तो वहां से आया नाम। I think तो incredible, सिंपल। incredible, but incredible how fit that is. But Wow. the beauty of it is now that I'm beyond my 50 years, I realize कि जब आप यूनिवर्स को मौका देते हो ना तो यूनिवर्स आपको ऐसी सी चीजें पेश करती है कि आपकी अकल दंग रह जाती है। आपको मौका देना पड़ता है। हम खुद में इतनी चीजें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं ना, हमने ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे होगा ऐसे होना चाहिए। नहीं, ये यूनिवर्स आपको भर भर के दे रही होती है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सीजिंग दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। और ये सब कुछ स्टिल हो गया मेरे That, सामने। हाँ, that is beautiful, absolutely. नहीं, हमारी तरफ आ रहा था। थोड़ा सा बीच में मेरे ख्याल से ब्रेक हुआ होगा, but everything is we got it. Uh, मरियम, टुडे आपका प्राइमरीली जलालसंस, अल्फता, बेक्ड, अगर हम ऐसे बड़े मिक्स देखें, सो इन परसेंटेज बेसिस जनरली जस्ट अ बॉल पार्क फिगर, व्हाट हाउ वेयर इज द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लाइक कौन-कौन से लार्जर प्लेयर्स एंड देन सेकंड एंड थर्ड? देखो अल्फता इज माय बिगेस्ट वन। उनके राइट, बहुत बड़े-बड़े स्टोर हैं और एंड उनका दैट वुड बी मोर देन आउट 50% or 60-70% ऑफ योर एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? 50%। 50. अल्फता वुड बी 50%, जलालसंस वुड बी 30%। एंड देन बाकी स्टोर्स हैं, छोटे-छोटे हैं, ये जैसे बेक्ड है, कैश एंड कैरी, बहुत बहुत से और छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने स्टोर्स हैं जो कि सिंगल स्टोर्स हैं या या 2-2 3 प्लेट्स हैं उनकी। A lot of our learning community basically wants to be in F&B businesses as well. And as I said, this is new Pakistan. This is also new world. के इस वक्त सिंगापुर, मलेशिया के अंदर जो social commerce का revenue है, for example, founder-based businesses selling through TikTok, Instagram has already crossed the Amazon का जो e-commerce model होता था, which was like the जो दराज का example, पाकिस्तान के अंदर एक दराज है, और
Instagram social commerce models हैं where people are selling to their own pages. So पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त I don't have the number. I think nobody in Pakistan has the number because पाकिस्तान में कोई research नहीं करता इन चीज़ों पे. But मुझे idea लगता है कि पाकिस्तान में भी इस वक्त दराज का revenue is not as much as people buying from other founders on their social media channels. लेकिन इधर तो होती है research. So TikTok revenue is now more than Amazon in Singapore. The product selling revenue. So it's one of our goals is here to tell our learning community of the new Pakistan, millennials, Gen Z, even like I keep telling my parents as well, that if you're starting up, you know, how you can reach the market. So एक model तो काफी classic बढ़ता जा रहा है, which is a social media model. But you have a very good insight on this partner distribution channel model as well. तो आज की basis पे अगर आपने नए store को या किसी नए बच्चे ने अपना कॉफी का ब्रांड लेके किसी स्टोर को रीच आउट करना हो, so what is the method that they should have? Just walk in or try to reach out? How does these partnerships happen behind the scenes? पता है ये बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली आई सी सो मेनी बिजनेसेस छोटे छोटे बच्चे दे हैव द आइडिया दे हैव एवरीथिंग लेकिन जब वो स्टोर के पास जाते हैं ना तो जो स्टोर वाला उनके साथ ट्रीटमेंट करता है ना वो बेचारे बद दिल हो जाते हैं मैंने देखा है इतनी दफा उनको बिकॉज आप एक फ्लेजलिंग बिजनेस को कहो कि जी आप मुझे 25 लाख रुपए दे दें इंडक्शन फी उसके बाद आप मुझे 25% अपनी सेल के ऊपर दे दें तो वो बेचारा कहेगा यार मैं अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये काम कर रहा होता इट्स नॉट फेयर आई डोंट नो हाउ दे एक्सपेक्ट बिकॉज ये जो अब दुकानें हैं ना ये अब बनी है लेज के लिए नेस्ले के लिए ये उनकी तरफ केटर कर रही है ये छोटों का तो सोचती ही नहीं है ये बेक का जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट आई मीन मैं दाद देती हूँ इन दोनों लड़कों को कि इन्होंने एक बिल्कुल एक यूनिक आइडिया लेके ये आगे चल रहे हैं इनको और लोगों ने कॉपी करने की अब कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स अ गुड थिंग कंपटीशन होना चाहिए लेकिन इनका वो इशू नहीं है कि जी आपने लाखों करोड़ों रुपए इंडक्शन फी नहीं देनी आपने मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं देने मौका तो दे रहे हैं ना अगले को इस वक्त तो मैं किसी नए एंटरप्रेन्योर को कहूंगी कि वो बड़े स्टोर्स को तो देखे भी ना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो वो ये छोटे स्टोर्स की तरफ जाए बिकॉज जब And छोटे स्टोर की तरफ ज्यादा लोग जाएंगे फिर वो ब्रांच आउट करेंगे उनकी और ब्रांचेस बनेंगी अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाएगी I think it's a great point because when you, as you were sharing with us, and we've seen that it was 2005 to 10 was my O levels and A levels time in Lahore before I went to university in Singapore. So उस time पे जब मैं OA levels में था, तो Jalal Sons and Al Fatah was still like primarily one or two stores branches. ये they were the छोटे place थे और बड़े आई थिंक कैश एंड कैरी वगैरह बड़े होते थे कुछ एक सदीक ट्रेड सेंटर के नीचे भी एक बड़ा था ये इट वाज अ डिफरेंट मॉडल लेकिन जलाल सन्स और अल्फता का जो राइज आया है उसके साथ आपका ब्रांड आई थिंक फ्यू अदर ब्रांड्स हैव रियली पिक्ड अप एंड इफ वी कैन आल्सो सी के बेक्ड काइंड ऑफ ब्रांड्स इन पोस्ट कोविड 2021 के बाद बेक्ड काइंड ऑफ मॉडल्स आर द मॉडल्स दैट वी कैन सी बल्कि बेक्ड हो रहे हैं मतलब वो एक ब्रांच से 3-4 ब्रांचेस पे पहुंच गया है कैंट से तीन बन गई हाँ बिल्कुल तीन बन गई हैं there is I think ye wali both these things ki once they have more product offerings more customers will come and they will branch out so your new founders their brands can go branch out with them and if others start seeing that this model is working then more competition will come which is very good for the economy because more shelf space for more founders to place their own product बेक में मैंने लास्ट टाइम देखा था तो आई थिंक 70 प्रोडक्ट्स तो मैंने काउंट किए थे 70 डिफरेंट ब्रांड्स एंड आई थिंक दैट वाज ऑलरेडी इतनी छोटी सी जगह है बिल्कुल बिल्कुल इसका मतलब है कि वो 70 एंटरप्रेन्योर्स को वो मौका दे रहे हैं which is a big thing so with your kind of brand presence when you approach baked it's a different communication than what a new founder will approach do you have any insights for the new founder how to approach baked and the similar if you have any more names as well that new founders can approach places to put their I think मेरे लिए थोड़ी सी आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने मेरा नाम सुना होता है उनको पता है कि जी ये 200 और ब्रांचेस के अंदर बिक रहे हैं तो हम यहाँ पे रखेंगे तो थोड़ी सी कस्टमर पुल आ जाएगी अब जो नया वाला एंटरप्रेन्योर जाएगा ना जो नया बच्चा या बच्ची जाएंगे उनका आइटम बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा तो फिर उनके आइटम को बहुत यूनिक होना पड़ेगा इट कांट बी अ रन ऑफ द मिल आइटम यू कांट कीप ऑन लाइनिंग अप इट बेक्ड विद ब्राउनीज it has to be something very different. Oh no, definitely. You've seen
in the last 20 years, and specifically in the last 5 to 10 years, have you seen a consumer preference in the taste evolving and some new markets that are being made for the products and also for your own products, because you started with atta and now you have a lot of other products in the pipeline? So ye wali journey bataएं, both from the consumer perspective and your business evolution into these different product ranges. भाई आज से 10 साल पहले देखो, कोई चिया, कोई किनवा, कोई मोरिंगा, कोई स्टिविया, नो वन न्यू व्हाट दीस थिंग्स वर. सो न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये बाहर से आता है ना, ये सारा ये नॉलेज बाहर से आती है. फिर वो बाहर से नॉलेज आ जाती है, हाफ बेक्ड आती है आहिस्ता आहिस्ता. अब किनवा यहाँ उग रहा है, चिया यहाँ उग रहा है. ये चिया एक साउथ अमेरिकन सीड है, ये उधर की पैदावार है. किनवा भी ऐसा है, यहाँ की तो है ही नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद, शेखुपुर है, ये यहाँ पे अब हार्वेस्ट हो रहे हैं, सिंध की साइड पे हो रहे हैं. तो ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, डिमांड इज शिफ्टिंग. अब गंदम उगाना, नो वन, सारे कहते हैं भी हम गंदम क्यों उगाएं, हम चिया उगा लेते हैं. तो एक क्योंकि सप्लाई तो चेंज कब होती है ना, जब डिमांड बदलती है. तो सप्लाई के अंदर शिफ्ट आ रहा है, बिकॉज डिमांड बदल चुकी है चीजों की. नो वन वांट्स द रन ऑफ द मिल सीड्स एनीमोर, एवरीवन वांट्स अ डिफरेंट सीड ऑल टुगेदर. और फिर उसके साथ एक ये भी है कि जैसे बैक टू बेसिक्स की मूवमेंट बाहर चली है और चलती आ रही है, अब वो यहाँ पर भी चल रही है. तो जैसे मेरा सेलिंग पॉइंट, माय यूएसपी यूज्ड टू बी स्टोन ग्राउंड एंड स्लो ग्राउंड. मेरी जितनी भी पिसाई है वो पत्थर के ऊपर होती है, वो एक मेटल की चक्की के ऊपर नहीं होती. दैट वाज माय सेलिंग पॉइंट, बिकॉज मेटल की चक्की जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है. जब हीट प्रोड्यूस होती है तो आपके ग्रेन के अंदर एंजाइम्स डेड हो जाती हैं. तो आप बेसिकली एक फ्लैट डेड आटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो जब आप उसको उस हीट के ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो उसकी एंजाइम्स अलाइव होंगी, वो आपके लिए ज्यादा मुफीद है. तो अब यहाँ पर भी लोगों को ये समझ आनी शुरू होगी. मैंने 2-3 ब्रांड्स देखे हैं जिन्होंने अब स्टोन ग्राउंड लिखना शुरू कर दिया है. सो आई एम फ्लैटर्ड कि लोगों को समझ आ रही है. Also, to be honest, from a marketing perspective, also millennials and Gen Z, they resonate more with these words, stone ground, यस. you know, and similar hand pressed, cold pressed, all these words. They have more uptake with the new generation. So I think very good for the market positioning. अभी तो डाली के कितने product ranges हैं और कैसे, how are you managing the production and the supply, and अब कितना बड़ा setup हो चुका है? देखो इतना बड़ा सेटअप नहीं है. कल ही मुझे मेरे वो अकाउंट्स वालों ने बताया कि अब हम 31 लोग हैं. पहले हम एक होते थे, मैं और समिया थी और एक हमारा एम्प्लॉय था. सो नाउ वेयर जो परमानेंट हैं वो हमारे 31 एम्प्लॉयज हैं एंड ग्रोइंग, बिकॉज प्रोडक्शन मैंने अपने अंडर ही रखी हुई है. हर बंसपुरा के करीब वहां पे मैंने जगह किराए पे ली हुई है. एवरीथिंग आई मेल प्रोसेस पैकेज under my eyes, because there's too much that can go wrong. There's just too much that can happen. हमारी लेबोरेटरी भी वही है. ऑब्वियसली कई चीजें हैं जो हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते. जैसे घी है, घी की मैंने जानवर तो नहीं रखे हुए ना, तो हमारा घी आता है बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर, 1 टन आता है. फिर उसकी टेस्टिंग होती है, लैब हमारी अपनी है, उसको टेस्ट करके वो ओके है तो वो टिन हो जाता है. अगर वो ओके नहीं है तो फिर वो ट्रक वापस चला जाता है. 2-3 दफा वापस गया है, उसके बाद हमारे सप्लायर को समझ आ गई है कि यहाँ नंबर 2 काम नहीं चलेगा. अब वो कई दफा होता है, मैं उसको कहती हूँ घी भेज दो, वो कहता है नहीं तुम्हारे मतलब का हले नहीं आया. तो फिर वी हैव टू वेट, कि वो हफ्ते बाद आएगा. So you have to set your own standards. Yeah, I think one of the key takeaway here is कि पाकिस्तान के अंदर जैसे सप्लाई साइड के अंदर हर चीज चलेगी, हर ग्रेड आएगा. आपने आगे being the retailer and being the brand, what are your values? What do you stand for? पीछे से तो हर चीज ही आएगी. You have to और set them, na? It is your responsibility. I'll share with you a story that you'll find very fascinating. So I was doing in 2013, I was doing an internship at Unilever Asia headquarters in Singapore, and my dream was procurement. And that's where I found out कि जो दुनिया में Unilever की Walls आइसक्रीम है, उसकी जो मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम होती है वो पाकिस्तानी चौंसा से बनती आ रही है हमेशा से. और that year 2013-24 में they were researching कि can they shift their supply chain to Alfonso mangoes जो इंडिया से आएंगे.
तो उसी वक्त टेस्टिंग चल रही हम्म, थी एंड टेस्टिंग के अंदर इट वाज प्रीटी क्लियर कि चौंसा इज द बेस्ट टेस्टिंग मैंगो इन द वर्ल्ड, अल्फोंसो इज द सेकंड बेस्ट टेस्टिंग मैंगो इन द वर्ल्ड. However, the idea that the problem that was happening was कि even to them at that level भी हर दफा नहीं लेकिन once in like 10 shipments चौंसा की जो quality है that would fluctuate and they would not be able to figure out कि ये पीछे से fluctuate कैसे हो गई. While on the other hand Alfonso and other suppliers जो हैं उनका everything was consistent because of course at that level at multinational level they have set protocols कि आपका कैसे काश्तकारी होती है कैसे हर चीज होगी. पाकिस्तान के अंदर at that level चौंसा was fluctuating as well. To I realized a couple of days later Unilever has shifted out. I don't know of 2024 or 25 but back then they had shifted out of Chonsa to shift to Alfonso and which is kind of a trend in Pakistan. A lot of these things कि companies ने Bangladeshi supplier या Indian supplier से हमारा raw material को replace कर देते हैं completely based on our जो fluctuating standards होते हैं ना एक चीज के जिसका जहां दाव लगे वो थोड़ा सा लगाने की कोशिश करता है और at बड़े level इन चीजों का बहुत नुकसान होता है. So या the good अभी 2-3 साल पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं No, I was बताती just very happy to find out that Chonsa is the best tasting mango in the world because I used to love Chonsa as a kid as well. I was like, yes, हूँ. internationally as हाँ, well. उसकी मिठास ही देखो ना, मतलब बहुत खूबसूरत और खुशबू. Top class, top class. आप कुछ कह रहे थे? हम्म. मैं ये कह रही थी कि इसी तरह ही ना 2-3 साल पहले बेरी हनी, छोटी मक्खी का शहद होता है, अरबियों को बड़ा पसंद है. अरबी जो है ना मर जाते हैं इसके ऊपर. तो उन्होंने यहाँ से कंसाइनमेंट जानी शुरू की होती है, तो जो लोकल मार्केट का रेट जो है वो दुगना हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है. तो मेरे जो सप्लायर हैं हनी का, उन्होंने मुझे कहा मैडम फिक्र की बात नहीं है, ये 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा. मैंने कहा क्या होगा 6 महीने में, कैसे नीचे आएगी कीमत, कहाँ से कहाँ हो गई, ये डबल हो गई. कहते हैं कंसाइनमेंट फेल हो जाएगी. इनमें से कोई फिक्र की बात ही नहीं है. एंड आई स्वेयर द 4th मंथ कंसाइनमेंट फेल हुई, वहां पे मार्केट में दोबारा से सप्लाई की रवानी आ गई, कोई इशू ही नहीं था. बिकॉज हम आदत से मजबूर हैं. Yeah, and you're sitting so close to this industry. I think weekly basis where you would be seeing these fluctuations Yes. in any form of production or supply and so on. Mariam, so we were talking about the fact कि अभी पाकिस्तान के अंदर फिर what आपने chia seeds बताया, moringa बताया, what are some of the trends that you're looking at in terms of consumer taste changing? और आपका उसी हिसाब से the product line that you are all the product line that you've started in the last 2-3 years and what is it in the pipeline? आई थिंक आजकल जो एक, जैसे आपने ग्लूटन का नाम तो अब हर किसी की जुबान Yeah, पर है, yeah. तो एक ग्लूटन इंटॉलरेंस जो है, ये आई डोंट नो एक्चुअली बढ़ती चली जा रही है या इसके बारे में लोगों को ज्यादा मालूम होता जा रहा है, तो फिर वो ग्लूटन को छोड़ना चले जा रहे हैं. बट दिस इज अ ट्रेंड व्हिच आई एम नाउ लुकिंग एट, दैट पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम गंदम. गंदम जो कि हमारी एक स्टेपल डाइट रही है इंडस सिविलाइजेशन से 5000 साल से, उसको अब लोग रद्द कर रहे हैं, उसको साइड पे रख रहे हैं. और कि जी हमने ग्लूटन नहीं खानी, तो वो बाजरा या चावलों का आटा या फिर गंदम में से ग्लूटन एक्सट्रैक्ट की गई, वो उसकी रोटियां खाना चाह रहे हैं. आई एम सी, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाती है ये वबा, लेकिन ये फैल रही है. हमारी अगली या दूसरी तीसरी नस्ल जो हो, वो शायद रोटी जो है वो गंदम की ना खा रहे हो, वो मकई की रोटी रोज के खा रहे होंगे, या बाजरे की, या किसी और किनुआ की रोटी खा रहे होंगे. That's how No, trends definitely. change. Gluten free is you're right is becoming quite a lot. Low glycemic index foods are becoming much more trends that Yes. doesn't spike the blood sugar that much. By the way, Hmm. so you started these back to मतलब शायद पहले भी हो रहा हो लेकिन 20 years तो हो गए आपका अपना brand के साथ. So what does your own and your family's diet look like in terms of the consumption of your own products and this new age और food? वही तो जाहिर है कंज्यूम सारा अपना माल ही खाते हैं. लेकिन द इफ यूर एक तो एक बैलेंस बड़ा जरूरी होता है. अगर आज मैं कहूं कि मैंने रोज मकई की रोटी खानी है, तो 10 महीने बाद मेरे सिस्टम में जरूर मकई को रिजेक्शन शुरू हो जाएगी. ये लोग ये नहीं समझते ना. अब हाई प्रोटीन डाइट करनी है तो सिर्फ प्रोटीन ही खाए चले जाना है.
कि एक पूरा अल्लाह ने एक निजाम, एक सिस्टम बनाया, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस. बैलेंस इज द की वर्ड हियर. पानी पीने, अब कई लोग हैं जी मीठा नहीं खाना, ठीक है मीठा नहीं खाना, प्रोसेस्ड मीठा नहीं खाना, आप फल तो खा सकते हैं, आप शहद तो खा सकते हैं, लेकिन वो जब वो चाल चलनी शुरू होते हैं ना हंस की, तो वो सब कुछ ही भूल जाते हैं. लेकिन फिर वो ऐसे भी होता है कि वो आप थोड़ी देर के लिए उसको कंटिन्यू कर सकते हो, इनडेफिनेटली आप कर भी नहीं सकते. हेंस द बैलेंस किक्स इन, कि 2-3 महीने बाद यू विल इवेंचुअली गिव अप एंड यू विल गो बैक टू बेसिक्स. So for me, the key word is basics and least processed. नॉन जीरो प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता ना आजकल की दुनिया के अंदर, लेकिन जितनी चीज को कम प्रोसेस किया जाए वो आपके लिए बेहतर है. बेसिक लॉजिक. Right. I wanna at the end I wanna talk about this tech in social media plus your website stage of your business. When did you first make your website? जहाँ से हम ऑनलाइन ऑर्डर भी इस वक्त कर सकते हैं सारे, और फिर इसी तरह इंस्टाग्राम पेज वगैरह. When did this come in your brand's journey? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज से 10-15 साल, आई वुड से 10 years के 12 साल के अंदर अंदर मैंने 4 फर्क कंपनीज के थ्रू कोशिश किया कि मैं क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ उसके ऊपर, कि कोई मेरा फेसबुक पेज चलाए. पहले फेसबुक होता था, अब इंस्टाग्राम का पेज होता है, लेकिन टोटल फेलियर. लाखों रुपए दे के ऑनलाइन ऑर्डर आते महीने के. अच्छा मैंने एक दफा किया. I'm a very stupid person keeps on making the same mistake again and again, and I did that 3 times. And the fourth time when my daughter joined Dali and she said अम्मी हमें ये करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, ये मैं 3 दफा कर चुकी हूँ, मैंने इसमें बहुत पैसे लगाए हैं. इफ यू हैव एनी अदर आइडियाज तुम अपने एंड के ऊपर करो, सोशल मीडिया को छोड़ दो, ये डाली की इसकी आपस में इनकी मैरिज इम्पॉसिबल है. तो शी सेड नहीं, आखिरी चांस आप मुझे दें. अब मैंने कहा यार चलो, वो बेचारी इतने शौक से कह रही है. आई सेड ओके, बट आई गिव हर अ वेरी वेरी लिमिटेड बजट. आई सेड ये 20-30 हजार से ज्यादा तो मैंने जाना ही नहीं है. शी वाज शॉक्ड, शी सेड अम्मी इसमें तो कुछ भी नहीं होगा. मैंने कहा फिर मुझे नहीं पता, ऐसे ही होएगा जो भी होएगा. एंड वो बेचारी ने विद दैट शू स्ट्रिंग बजट, उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता चलो मैं माँ को रिजल्ट्स दिखाऊंगी तो फिर ये तो शायद खुल जाए बक्सा, वॉलेट खुल जाए. तो उसके अंदर उसने शुरू किया एंड एक्चुअली आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स, ऑर्डर स्टार्टेड कमिंग इन, स्टोर्स के अंदर भी सेल बढ़ गई. क्योंकि एक आई थिंक लोग इतना सोशल मीडिया को देखते हैं कि वो कनेक्शन, जब वो स्टोर में गए उन्होंने ब्रांड वही रिकनेक्ट किया. तो फिर मैंने कहा अच्छा हाँ ना कुछ दम लग रहा है इसके अंदर. तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जब तक आपका खुद इन्वॉल्वमेंट ना हो, आप थर्ड पार्टी जब करते हो, तो मेरे लिए तो दैट डिडंट वर्क. इट वर्क्स फॉर अदर पीपल, दे इन्वॉल्व कंपनीज हु डू दिस फॉर देम एंड दे गेट द रिजल्ट्स, बट फॉर मी इट डिडंट. सो जब से इसने खुद करना शुरू किया है, आई थिंक लेट्स सी अब हम कितनी देर तक रिजल्ट्स देखते रहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे आ रहे हैं. आई एम हैप्पी विद द सोशल मीडिया सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग. Uh, you are absolutely right, and I would highlight these 2 points for everybody. One is that this we have seen over the years across companies, across brands, that if you're a small business or if you're a founder-led company, the outsourcing of your business will never work with the digital marketing firms. उसकी रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स जो हैं, देयर बजट टू ऑपरेट इज ओनली जस्टिफाइड इफ यू आर अ वेरी लार्ज कंपनी, Nestle's Yeah. and P&G's, because to run the economics doesn't work for this, because we have to, so digital marketing firms will take let's say 5 to 10 lakh per month on a retainer to create that kind of content, and generally for small business the sales are not that much. लेकिन digital marketing firms के क्योंकि उन्होंने अपने hire किए होते हैं, they have many brands, so it doesn't work. So I always tell all the small businesses and founder led companies to do it yourself, or anybody in your family does it, Yes. because that's one point economics, but the other point is also true, because at that level customers actually don't care about the quality of the content, they care about the authenticity which only you can bring if it is your brand. डिजिटल That's मार्केटिंग फर्म्स के अंदर true. ऑथेंटिसिटी नहीं होती. वो एक बड़ा ब्यूटीफुली डिजाइंड और एक मार्केटिंग कंटेंट होता है, इसको हम बिल बोर्ड्स पे देखते हैं जैसे, लेकिन टू बी ऑथेंटिक यू गॉट टू बी योरसेल्फ. तो और मजे की बात है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो unhinged humor, authentic, just being yourself, being whatever who you are, आपका humor style, आपका बनाने का style, people resonate with personalities, and the more
personality you can show off your brand on social Yes. media, that is what it's going to work. It's going to be economically feasible, also it's going to work better. And then the last point, which you also mentioned, the goal of social media in a lot of ways, it's a growing market. Social commerce is just picked up in like last 2 years, and it's going to for sure replace most, like I think it's less than 5% of Pakistan total sales still online होती है दुनिया में. 25% तक digital sales e sales पे पहुंच गई है दुनिया. तो ये पाकिस्तान के अंदर it's only gonna grow the online sales orders. My mom these days, चाहे हमारे घर में रग आ रहा है या कुशन कवर्स आ रहे हैं, वो इस वक्त घर में बस बेली बजती है पता चलता है. अच्छा मम, one of the times she was just scrolling to the mobile, the cushion covers came in front of her and she's like, yeah, I want to buy these things. So that idea of using social commerce, that how this is changing the behavior of everybody who is buying, ये social commerce से बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा. And even though आपका direct online purchases शायद उतनी अगर नहीं भी लग रहा, लेकिन इसका जो result आ रहा है वो आ रहा है brand, people are becoming brand familiar, and then they are buying your products through retailers, which is completely a multiplier effect on your sales, जो कि पहले सिर्फ स्टोर की ब्रांडिंग से चल रहे थे, यानी कि अल्फता और जलालसंस में पड़ी हुई है तो चीज अच्छी है, या बेक में पड़ी हुई है तो अच्छी है, वर्सेस पीपल गोइंग टू द स्टोर्स एंड सेइंग कि यार हमने सोशल मीडिया पे डाली को देखा हुआ है या XYZ को देखा हुआ है, डू यू हैव देयर प्रोडक्ट. So that idea is very important. So I think you are with your daughter, I think you guys have just completely nailed it. अभी तो बड़ा मजे का लग रहा है. छोटा सा Instagram अभी शुरू ही हुआ है, but बहुत अच्छा जा रहा है जितना भी जा रहा है. So I would highly say encourage के she should just keep going on this path. I will अभी let her वो know. अभी full time involve हो गई है वो full time involved हो गई. She was working for what was she? Actually, yes, ironically, she was working with National Foods. right. Oh, so she graduated. She is now a post university kid. Right. Yes, Right. yes, वो काफी देर हो गई यूनिवर्सिटी को खत्म किया, तो 2-3 साल हो गए उसको नौकरी करते हुए. तो फिर उसने कहा कि ये अम्मी मैं वो यही बात है ना, ये मैं 9 to 5 नौकरी कब तक करूंगी. तो मैंने कहा फिर आ जाओ. Zabardast. And now she has a full new digital business that she can really, because this is what people consume. The Gen Z and millennials are consuming content on the social media. So it's always very fun to have a brand and take it on the social media. Acha, Mariam, to coming to the close, where what is now in 2025, we have just started. What are some of the things regarding Dali that you are excited about in terms of growth or new products that might be in the line, and anything that regarding your brand you're looking forward to? I'm looking at a couple of new products. जैसे मैंने आपको granola के variants का बताया, वो इंशाल्लाह I think should be on the shelves in about a month's time. 2-3 और products. लेकिन मैंने एक इस साल I think what I want to do is the I have an inherent entrepreneur in me, और मेरा दिल चाहता है कि मैं नई से नई चीज पैदा करती जाऊं. लेकिन अब मुझे थोड़ी सी अकल आ गई है, तो अब मैं ये कोशिश करूंगी कि जो मैंने प्रोडक्ट्स, जितने अभी कोई 43-44 प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको आगे 1-2 साल इनके ऊपर कंसंट्रेट करूं, मुझे एक पक्की बेस बनाऊं, फिर उस बेस से आगे चलूं. बिकॉज अभी तक तो आई बीन ऑल ओवर द प्लेस ना. मुझे शौक होता है एक प्रोडक्ट बना लूं और मैं नया प्रोडक्ट बनाऊं, उसके ऊपर काम करूं. अभी भी मेरे इतने प्रोडक्ट्स में किताब भरी हुई है कि मैंने ये करना है, वो करना है, ये करना है. लेकिन आई फील कि मे बी आई शुड स्लो डाउन विद द डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द वंस आई हैव. बिकॉज स्टोर के अंदर भी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है ना, आखिर वो कितने मेरे प्रोडक्ट्स रखेंगे. आई हैव टू वर्क विद दैट ऑल्सो. Yeah, definitely, but very exciting that 43 products are already in line. Started with one product. It's I think it's a huge number, and it looks very cool as well. That you have your own lab, you test products, you have a notebook where you're generating ideas, then they're reaching the market. I think it's a beautiful ecosystem. So much to learn. Where are all the places? Can you share the Instagram? I think I will share it as well because it's open in front of me. It's Dali Earth Food. We will put it in the video as well, where people can find you on the Instagram. And the website is, what is the URL for the website? www.daliearthfoods.com.pk. Perfect. And people can order online as well.
Yes. Mariam, thank you so much for giving us this time. This was You. absolutely so much learning happened. We learned all about this, and I think all the listeners and readers that when we convert it into case study as well, and this gets distributed to our community as well, will learn a lot. And I think both the things that you're an inspiration for pretty much everybody who have a passion and they want to pursue it, and they're like, when we'll figure out XYZ, and when the time is right, we'll do it. But you're an inspiration to just do it and figure out as you go. And also we are very excited of your new journey with your daughter to come onto the social commerce, and how you are, your content is now reaching to way more people, and through that the brand is going to different houses as well. And I know that my community, we are all into this new movement as well of returning back to the basics. We're very much into health conscious, so we are always keeping an eye on what is all the new stuff in the market that we can start consuming as well. So, I mean, just Thank you. Thank you. good wishes, and hope you just keep growing and keep having as much fun as you're having. That's the key word. Have fun. Enjoy. You should enjoy yourself. ना सब कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि एक वो मेहनत के अंदर आपके खून पसीने तो निकलते ही हैं, लेकिन साथ साथ मजा भी तो आता है ना. Imagine a Definitely. trek. You're going up a mountain. You're going to sweat. You're going to burn in your knees and your hips. लेकिन ऊपर पहुंच के फिर मजा तो आता है ना. Not that क्योंकि मैं ऊपर पहुंच गई हूँ, लेकिन जर्नी बड़े मजे की है. Amazing. I think on that note, what a good analogy to end the podcast today.